Hello students, in our today's class of OB we are going to study about the topic counseling, right? Counseling is the topic of your third unit and what does it mean? Counseling, I hope you all have heard this word counseling, right? काउंसलिंग हमने अपनी जनरल लाइफ में सुना हुआ है कि बहुत जगह यूज़ होता है रिगार्डिंग द करियर हम काउंसलिंग की बात करते हैं रिगार्डिंग द जॉब्स काउंसलिंग राइट तो हमें किस वर्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंटेक्स्ट व्हाट इज काउंसलिंग. Counseling is a sort of discussion with an employee of a problem that he has usually emotional content in order to help him cope with it in a better way. I am repeating it again. It is a sort of discussion with an employee regarding the problem that he is actually suffering from with his emotional context in order to help him cope with it in a better way, right? It means ये एक तरीके का डिस्कशन है. हम इसमें एक डिस्कशन करते हैं एम्प्लॉय के साथ उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि उसके इमोशन से जुड़ी हुई है, ठीक है. और इसका पर्पस होता है कि ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है, और उसको हेल्प कर सकें उस प्रॉब्लम से कोप करने में, उस प्रॉब्लम का सामना करने में एक अच्छे तरीके से, राइट. Counseling involves exchange of ideas. Counseling basically involves exchange of ideas and feelings between two parties, counselor and counselee. Counseling में ideas share होते हैं, feelings share होती है between the two parties. There are two people. One is counselor. One is counselor means the person who is understanding the feeling of counselee, and counselee is a aggrieved person or a person in a problem, right? A person who is not finding a way out. So in a counseling process, two people are there. In a counseling process, two people are there. One is counselor, second is counselee, right? And what is the task of counselor? Task of counselor is to help the counselee to find a better way to cope with the problems, yet to cope with the emotional issues which he is suffering from, right? So what is counseling? Counseling is the exchange of ideas and feelings between two parties, counselor and counselee, right? And in organizational context, it is a sort of discussion with the employee regarding the problem he is actually suffering from in his emotional context to help him cope with that problem in a better way, all right. And the basic objective of the counseling is to bring an employee back to his normal and mental position in which he was before the emotional problem emerged. अंडरस्टूड. यानी कि काउंसलिंग का पर्पस है कि आप अपने एम्प्लॉय को वापस ही नॉर्मल कर रहे हो, उसको उसकी वही पुरानी मेंटल पोजीशन में लेकर आ रहे हो जैसा कि वो उस प्रॉब्लम के अराइज होने से पहले था, राइट. एक प्रॉब्लम होती है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा है कि लोग होते हैं, ठीक है, लोग होते हैं एंड उन्हीं के बिहेवियर के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि क्योंकि लोगों ने ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर रिसोर्सेज हैं उनको चैनलाइज करना है टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, right. So here the need is to counsel them, here the need is to motivate them in the better way, ठीक. बट अगर कोई पर्सन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो यहाँ पर उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. एक केस हुआ था, आई वुड लाइक टू टेल यू. देयर वाज अ केस दैट हैपेंड इन Maruti company in 2000. It is the time of 2012 or 2013, I'm not confirmed. At that time an HR was burnt by some employees, ठीक है. वहाँ के HR को, मारुति की HR को वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने कुछ उनकी डिस्कशंस हो गए थे, बहुत ही हाई लेवल के अनहेल्दी डिस्कशंस हो गए थे. तो वहाँ के लोगों ने उसको, मतलब कुछ वर्कर्स ने उनको ज़िंदा जला दिया था, कुछ यूनियंस वालों ने, ठीक है. बहुत बड़ी कंपनी है मारुति, दैट इज़ इन मानेसर प्लांट में ये हुआ था. तो उसका ये इम्पैक्ट हुआ था कि वहाँ के कई एम्प्लॉयज़, वहाँ के मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉयज़ ने बैक ऑफ कर दिया था, यानी कंपनी कई दिन तक बंद रही, वो जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे लोगों ने, एंड दे वाज नॉट रेडी टू कम बैक टू द कंपनी, एंड इट इज़ इंकरिंग अ हाई कॉस्ट टू कंपनी टू हायर न्यू एम्प्लॉयज़ इन अ न्यू वे एंड मेकिंग ऑल द थिंग्स इन न्यू टर्म्स, राइट. तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि पुराने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका विश्वास कैसे जीता जाए. देन द काउंसलिंग सेशन वॉज डन. तो वहाँ पर क्या किया गया, कंपनी ने क्या करा, जितने टाइम कंपनी बंद रही है, 2 महीना 3 महीना वहाँ पे नहीं आए जो एम्प्लॉयज़ मैनेजरियल लेवल के, सुपरवाइजरी लेवल के, एग्जीक्यूटिव लेवल्स के,
तो उनको सैलरी एंड बेनिफिट्स उनके प्रॉपर प्रोवाइड कराए गए, प्लस एक्सपर्ट्स के थ्रू काउंसलिंग कराई गई ताकि उनका ट्रस्ट कंपनी वापस ही से जीत सके। ठीक है, सो लोगों के अंदर क्या होता है, हमेशा सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। ठीक है, आपकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, द लाइफ हैज़ टू बी चेंज। ठीक, तो लाइफ जब चेंज होती है, चेंजेस होते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, एंड दैट प्रॉब्लम्स मेक द पर्सन इन टेंशन। ये प्रॉब्लम्स इंसान को क्या करती है, टेंशन में लेकर आती हैं, एंड एट दैट टाइम द काउंसलिंग इज़ वेरी नेसेसरी। काउंसलिंग इज़ वेरी नेसेसरी क्योंकि जब हर चीज़ का देखिए, प्रॉब्लम में अगर आप हो तो उसका असर आपकी वर्क लाइफ पे भी पड़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ता है, एंड अगर जो आपकी वर्क लाइफ पे जो उसका असर पड़ रहा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी असर करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट इस बारे में सोचता है कि उसके एम्प्लॉय की टाइम टू टाइम काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, या अगर कोई एम्प्लॉय आपका परेशानी में है, ठीक है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ problem in organization, yeah, he's suffering any kind of problem in his personal life, then also it is the responsibility of the managers to provide him counseling. It is the responsibility of the other levels of the hierarchy to provide him counseling, to channelize him, yeah, to help him to cope up with the problems, right? So the objective of counseling is to bring the employee back in his same मेंटल पोजीशन, यानी कि जैसा वो पहले था, प्रॉब्लम अराइज होने से पहले वो जैसा था, उसको उसी मेंटल स्टेट में वापस लेकर आना, यही काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग। फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या करता है, देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं काउंसलिंग में। एडवाइस, राइट, रीएश्योरेंस, कम्युनिकेशन, release of emotional tension, clarified thinking, and reorientation. There are 6 functions which are given. First is advice. Advice is the simple function in counseling, right? It is to provide advice to counselee on the matter because of which he is feeling the sense of maladjustment. Okay, in advice it is advice is given to the counselee because he is feeling the sense of maladjustment. Maladjustment मतलब improper adjustment in the organization, right? कभी कोई नया एम्प्लॉय आता है या कभी कोई नया मैनेजर आता है, then at that time employees can feel, या at that time managers can feel the maladjustment. Maladjustment मतलब they are not feeling good environment there, या they are not feeling improper there, ठीक है, they are not adjusting over there. So the kind of counseling can be provided to the counselee is advice. Though giving an advice appears to be a simple function, right? But in actual practice, when we practice the advice, it presents number of problems. ठीक है, यानी कि जब हम एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब एडवाइस जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत इजी लगता है सुनने में, बट लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, व्हेन वी ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस, तो उसमें हमें पता चलता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स या कितने नए क्वेश्चंस उसमें अराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए काउंसलर क्या कर सकता है, बिफोर एंटरिंग इनटू द सिचुएशन, यानी कि एडवाइस देने से पहले ही वो उसको अपने काउंसली की सारी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए, उसके सराउंडिंग्स को समझ लेना चाहिए, तब जाके उसको एडवाइस करना चाहिए, राइट? सेकेंड इज रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस मतलब, एश्योरेंस मतलब किसी को भरोसा दिलवाना, ठीक है, एंड रीएश्योरेंस मतलब बार बार उसको भरोसा दिलवाना। रीएश्योरेंस इन्वॉल्व्स गेटिंग अ पर्सन करेज एंड कॉन्फिडेंस टू फेस अ प्रॉब्लम एडिक्वेटली, राइट? रीएश्योरेंस मीन्स encouraging a person and providing him the confidence to face a problem adequately. ठीक है, many times problems are over emphasized, मतलब कई बार हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि वो इतनी बड़ी होती नहीं है। ठीक है, एंड पर्सन क्या करता है, उससे कोप अप करने वाला पर्सन क्या करता है, ये सोचता है कि ही इज़ इनकैपेबल ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, तो इस पर, और उसको उस चीज़ से टेंशन होती है, तो इस टाइम पे भी हम किस तरीके की एडवाइस, किस तरीके की काउंसलिंग करते हैं, उसको एश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, यू कैन डू इट, इट्स नॉट सो बिग, और उसको उसके पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है थोड़ा। तो इस तरीके से भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं। थर्ड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, you all know that communication is very important in any organization. It is kind of lifeblood, right? जैसे बिना कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं हो सकता, एंड बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ द काउंसलिंग, राइट? अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि टू द, आपकी बात मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए, एंड मैनेजमेंट के डिसीजंस को एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, राइट? सो बोथ काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस आर नेसेसरी इन द counseling. And in upward direction, communication is helpful in converting many emotional feelings of
conveying many emotional feelings of employees. In organization where upward communication is not properly emphasized, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर अपवर्ड कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, एम्प्लॉयज़ को नेगेटिव फीलिंग आने लगती है कि उनकी बात को नहीं समझा जा रहा है, और उनका ये चीज़, उनकी ये नेगेटिविटी क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, और फिर बाद में वो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन के रूप में बाहर आती है, राइट. सो कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग. कम्युनिकेशन भी काउंसलिंग का ही फंक्शन है, ठीक है. नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन. काउंसलिंग का एक और काम है कि अगर किसी को इमोशनल टेंशन है, इमोशनल टेंशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकती है या पर्सनल भी हो सकती है, तो वो एक पर्सन क्या कर सकता है, उसे रिलीज कर सकता है, यानी कि उसे बाहर निकाल सकता है, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस. इसको हम इमोशंस का प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाई करना, फिल्टर करना भी कहते हैं, ठीक है. देखिए, अ पर्सन टेंशंस किसी भी पर्सन को जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन, एंड वो डिससेटिस्फैक्शन उसको पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं. एंड दोनों तरीके के आप डिससेटिस्फैक्शन क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में ही इज़ इमोशनली टेंस्ड एंड ही कांट, ड्यू टू दैट ही कांट फोकस ऑन हिज work. So it can make losses to the organization, and both the tensions are the matter of concern for the organization, and for that purpose also counseling is done to release the emotional tension, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टेंशन कैसी होती है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टेंशन होती है जब एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, राइट. उसके मनपसंद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या फीलिंग ऑफ एपैथी मीन्स यानी कि उसकी बात को कोई नहीं समझ रहा, उसके पॉइंट्स को कोई नहीं समझ रहा है, ठीक. तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल काइंड ऑफ टेंशन, राइट. एंड पर्सनल टेंशंस उसके फैमिली रिलेटेड हो सकती हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकती हैं, राइट. नेक्स्ट इज क्लैरिफाइड थिंकिंग. काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, किसी की सोच को क्लैरिफाई करना, किसी की थिंकिंग को क्लियर करना, राइट. सो इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द काउंसलर्स थिंकिंग, द काउंसलर सर्व्स एज एन एड ओनली, यानी कि काउंसलर को क्या करना है यहाँ पे, सर्व्स एज एन एड ओनली मीन्स ही ओनली हैव टू हेल्प द काउंसली, ही डोंट हैव टू, ही हैज़ नो नीड टू शो हिम द पाथ, ठीक है. क्लैरिफाइड थिंकिंग मतलब इफ़ अ पर्सन मान लीजिए इफ़ अ पर्सन हैज़ हैविंग नंबर ऑफ चॉइसेस, राइट, एंड ही इज़ नॉट, ही इज़ हैविंग टेंशन कि विच चॉइस इज़ बेस्ट, राइट. So what counselor has to do, what counselor has to provide him the pros and cons. काउंसलर क्या कर सकता है, उसको pros and cons बताएगा इन choices के, बट सेलेक्ट किसने करना है, काउंसलिंग ने खुद करना है. सो दिस इज कॉल्ड द क्लैरिफाइड थिंकिंग काइंड ऑफ काउंसलिंग. ये क्लैरिफाइड थिंकिंग काउंसलिंग है, फॉर्म ऑफ काउंसलिंग है, जिसमें सिर्फ आप उसको वे आउट नहीं कर रहे हो, उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे हो, उसको नहीं बता रहे हो कि विच इज़ बेस्ट, बट यू आर ओनली प्रोवाइडिंग हिम द क्लियर व्यू. आप हर चीज़ का आप उसको क्लियर व्यू दे रहे हो, जिसमें से कि वो खुद ही सिलेक्ट करता है, right. Next is the reorientation. Reorientation is another function of counseling, and it involves change in the counselor's psychic मतलब उसकी psychology through a change in basic goals and values, ठीक है. reorientation means changes, bringing the changes back in the counselor's psychic, यानी psychology, उसकी psychology या उसकी बेसिक चीज़ों में ही आप चेंजेस लेकर आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रीओरिएंटेशन. एंड व्हाट आर हिज बेसिक थिंग्स, उसके वैल्यूज़, उसके गोल्स को ही आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक काउंसलिंग एंड द फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग. फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग आर एडवाइस, रीएश्योरेंस, communication, release of emotional tension, clarified thinking, and reorientation. I hope you understood it well. Thank you.